Yes, are you ready? Yes, sir. So let's start conversation very first of all, and after that we are going to study a new class. All right? Are you ready? Yes, sir. Complete line. Are you ready? Yes, sir. We are ready. I am ready. कैसे बोलोगे? I am ready. 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 मैं excited हूँ. I am excited. 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 इसलिए That's why. that's why मैं कोशिश कर रहा हूँ. I am trying. I am trying. I am trying. मेरे पास मार्कर है. I have a marker. I have a marker. I have a marker. मेरे पास कॉन्फिडेंस है. I have confidence. I have confidence. I have confidence. मेरे पास टैलेंट है. I have talent. I have talent. आपके पास टैलेंट है. You have talent. You have talent. You have talent. मुझे एक बात बताओ. Tell me one thing. Tell me one thing. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? What are you doing? मैं इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting. I am waiting. मैं स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ. I am waiting for students. I am waiting for students. I am waiting for students. मेरे पास कुछ नहीं है. I don't have anything. Otherwise, I have nothing. I have nothing. कैसे बोलोगे? I have nothing. I have nothing. I have nothing. लेकिन फिर भी but even कैसे बोलने वाले हो? But even मैं एक कार खरीदूंगा. I will purchase a car. I will purchase a car. I will purchase a car. मैं आपको कॉल करूंगा. I will call you. I will call you. मैं आपको बाद में कॉल करूंगा. I will call you later. I will call you later. I will call you later. स्टूडेंट होने के नाते being a student, दोस्त होने के नाते being a दोस्त, being a friend, क्लासमेट होने के नाते being a classmate, टीचर होने के नाते being a teacher, ट्रेनर होने के नाते being a trainer, आपको सपोर्ट करना चाहिए. You should support. आपको मुझे गाइड करना चाहिए. You should guide me. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak English. मैं जानता हूँ. I know. मैं जानता हूँ कि I know that. बोलने से ही बोलना आता है. Speaking comes speaking. लिखने से लिखना आता है. Writing comes writing. पढ़ाने से ही पढ़ाना आता है. Teaching comes teaching. मैं घूमना चाहता हूँ. I want to visit. मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. I want to share something. मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. I want to explain something. मैंने कॉल किया था. I called. मैंने आपको कॉल किया था. I called you. मैंने आपको इनवाइट किया था. I invited you. लेकिन फिर भी but even कैसे बोलने वाले हो? But even आप नहीं आए. You did not come. आपने जवाब नहीं दिया. You did not reply. You did not respond.
You did not respond. आपके कारण, because of you, because of you, मेरी फैमिली के कारण, because of my family, because of my family, मेरे करियर के कारण, because of my career, because of my career, मुझे पढ़ना पड़ता है. I have to study. I have to study. I have to study. मुझे समझना पड़ता है. I have to understand. I have to understand. आप चालाक हो. You are clever. You are clever. आप मासूम हो. You are innocent. You are innocent. You are innocent. You are innocent. ये आपकी गलतफहमी है. दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज मिसकंसेप्शन आप यूज करते हो. दिस इज अदरवाइज इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग. कैसे बोलोगे? इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग. इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग. ये आपका वहम है. यस, इट इज योर इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब होता है वहम, भ्रम. ये आपका वहम है. कैसे बोलोगे? इट्स योर इल्यूजन. कैसे बोलोगे? इट्स योर इल्यूजन. इट्स योर इल्यूजन. ये तो 4 दिन की चांदनी है. इसके लिए लाइन आप यूज करते हो, इट्स 9 days वंडर. या दिस इज इंग्लिश माय डियर. ट्रांसलेशन से नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन से नहीं चलती है. या इट्स 9 days वंडर. ये 7 दिन की चांदनी है. ऐसे नहीं होगा इट्स 4 days वंडर. या सो सेम लाइक दीज आर द डायलॉग्स. सो मैंने कहा कि ये 4 दिन की चांदनी है. कैसे बोलोगे? इट्स 9 days वंडर. इट्स 9 days वंडर. इट्स 9 days वंडर. इसलिए दैट्स वाई आपको एंजॉय करना चाहिए. You should enjoy. You should enjoy. You should enjoy. You should enjoy. मेरे पास एक कार थी. I had a car. Have second form. Past it means second form. I had a car. कैसे बोलोगे? I had a car. मेरे एक डाउट था. I had a doubt. I had a doubt. I had a doubt. मेरे पास एक बाइक थी. I had a bike. I had a bike. चलो शुरू करते हैं. Let's start. Let's start. Let's begin. Let's begin. Let's begin. नई क्लास शुरू करते हैं. Let's begin a new class. मैं begin तक लेके जा रहा हूँ, आते वापस रिवर्स है. या साउथ मूवीज में क्या होता है? साउथ मूवीज के अंदर वो फ्लैशबैक में ज्यादा ले जाते हैं. जैसे जूम करके ऐसे जूम करती है आंखों पे, फ्लैशबैक. सो फ्लैशबैक में आप वो जल्दी जाते हो, पास्ट में बड़े चल जाते हो. मैं आपको है ना एक सुप्रीम लेवल तक लेके जाना चाहता हूं. यू आर गोइंग बैकवर्ड. दिस इज नॉट ए गुड हैबिट. लेट्स बिगिन अ न्यू क्लास. और भी बात करते हैं. एक वर्ड और होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट स्टार्टेड का मतलब भी शुरू करते हैं, यूज करते हैं. So tell me one thing, do you have any problem in the previous classes? No sir, we don't have any problem. Okay, fine. If any kind of problem is there, you should ask me. I will tell you again. I will teach you again. Okay? So today I will teach you a special class. Today I will teach you a special class. अगर ये क्लास आपने बचपन में पढ़ ली होती, I mean to say स्कूल टाइम में अगर आपने इसको स्टडी कर लिया होता ना जनाब, तो आपके जो निबंध होते हैं ना, ऐसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते थे. आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते थे. वो भी सिर्फ और सिर्फ एक क्लास की बदौलत. विद हेल्प ऑफ ओनली वन क्लास यू कुड गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन योर स्कूल टाइम. सो आज उसी क्लास के साथ बात करने वाले हैं. या दिस इज रियली डिस्टर्बिंग. या इवन फाइन, वी विल मैनेज एनी हाउ. टुमारो वी विल फिक्स इट प्रॉपरली. यस. So here is a class, and the time word of class is there. So आज की क्लास का जो टाइम वर्ड रहने वाला है, आपकी जो क्लास रहने वाली है, that will be there. देर से ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना. वहां, या देर का मतलब तो वहां होता है.
Stop translating, stop cramming two things you are not to follow. So let's understand. देयर का एक्चुअल में यूज कहां होता है, पहले सेंस समझना है, फिर हम जाकर के आगे बात करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ में, फॉर्मूलाज के साथ में. सो जितने भी सड़क छाप डायलॉग होते हैं ना, आई मीन टू से, हम बोलते हैं कि कुछ भी है, कुछ भी है. आपने कहा कि, मैंने पूछा व्हाई आर यू लेट, आपने कहा सर ट्रैफिक था. आपको इतना बोलना है ट्रैफिक था, ऐसे तो नहीं बोलने वाले ना ट्रैफिक वॉज. ट्रैफिक वॉज, ये तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा, फिर सेंटेंस का मतलब स्टेटमेंट सही से बनाए नहीं. आपने कहा कि जैसे बाहर आवाज आई, बाहर जाके देखा, आपने कहा सर है ना लोग है, आप ऐसे तो बोलो पीपल आर. इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है. बचपन में एक नाम से बड़ा डराया गया हमें. चुप हो जाओ, वहां हाबू है. हाबू नाम से बड़ा आतंक मचा है. हाबू नाम से बहुत डराया गया है हमें, और आज तक हमें पता ही नहीं है भला होती क्या है, होता क्या है. पता हुआ क्या, अपने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को डराया, पेरेंट्स ने हमें डराया, और हम आने वाले बिना पीढ़ी को डराने वाले. पक्का डराओगे, गारंटी से बता रहा हूं मैं. डेफिनेटली ये होने वाला है. हमें पता नहीं व्हाट इज हाबू ऑल अबाउट. उसके बावजूद भी हम करने क्या वाले हैं, आने वाली जनरेशन को हाबू है, यही करने वाले हैं, यही करने वाले हैं. आई मीन टू से, आप बताते हैं कुछ भी है, कुछ भी है. इस केस में आज की क्लास रहने वाली है देयर, एंड हियर इज ए फॉर्मूला. लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल. वर्कर, नॉट वर्कर. Okay, I'm going to clean these one. So here is a formula, and the formula is there is M तो नहीं आ सकता because here is no I. Is are was were. Yeah, you can use here something. कुछ भी, आपको इतना सा बताना है, उस चीज का नाम बताना है कि कुछ भी है. So here is a formula. There is are was were something. आप बताते हो कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी है. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. जैसे आप लेट हो गए, लेट होते ही मैंने कहा कि भैया मैं भी जा रहा हूं, आई एम गोइंग राइट नाउ. आपने कहा सर डोंट गो, ट्रैफिक है. आपने कहा ट्रैफिक है, आपको बाईपास होकर जाना चाहिए. यू शुड गो थ्रू बाईपास. मार्केट में ट्रैफिक, आपको इतना तो बोलना है ट्रैफिक है. आप ऐसे नहीं बोलने वाले हो ट्रैफिक इज. ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, तो आप बोलने वाले हो देयर इज ट्रैफिक. और मार्केट में तो इन मार्केट. नाउ वन अनदर थिंग, कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हम ट्रैफिक की कंडीशन में आर यूज कर लेते हैं. बट फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आप इज यूज करने वाले हैं, क्योंकि उस ट्रैफिक, पर्टिकुलर ट्रैफिक वो जितना भी है वो ट्रैफिक एक ही है. अगर आप बात करें तो पूरी सिटी में कहा कि कितने ट्रैफिक हो रखे हैं, मान लीजिए एक यहां पर, एक जगह यहां पर हो रखा है, एक यहां पर है हो रखा है, तो अब वो काउंटेबल वाली कंडीशन दूसरी है, लेकिन आप इज ही यूज करने वाले हो. आपने कहा मार्केट में ट्रैफिक है, कैसे बोलने वाले हो, देयर इज ट्रैफिक इन मार्केट. कैसे बोलने वाले हो, okay, now suppose you are going by bike and you don't have helmet. Suppose you are going by bike and you don't have helmet. कोई आ रहा था वहां से, उस साइड से कोई आ रहा था, उसको भी आपने नोटिस किया था कि वो भी गया और यू टर्न लेके वापस आ गया था. आपने उसको रोका, रोक करके पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. उसने जवाब दिया आपके पास हेलमेट नहीं है ना, डोंट गो. कौन खड़े हैं, मामा. यस, बड़े इस नाम से बहुत फेमस कर रखा है हमने. यस, सो कहते हैं कि पुलिस है, आपको इतना सा बोलना है कि पुलिस है. आप ऐसे नहीं बोले हो पुलिस इज, पुलिस इज. आपने कहा पुलिस है, तो आप बोलने वाले हो देयर इज पुलिस. कैसे बोलने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो, देयर इज पुलिस. कुछ भी है, आपको इतना सा बोलना है. ओके, जैसे
जैसे होता क्या है, जैसे अगर सर्दियों की बात की जाए ना, विंटर सीजन, सो इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 24 आवर्स रहती है। लेकिन जब बात आ जाए गर्मियों की, समर सीजन की, मजे तभी आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। अब एक चीज और, बेसिकली हम एक गलती करते हैं, वो ये कि इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लाइट। हम बोलते हैं लाइट आ गई, लाइट गई, यही बोलते हैं। एक चीज बताऊं ना आपको, अपना जो बचपन था ना, अपना जो बचपन था ना, द बेस्ट चाइल्डहुड वी हैड, अपना बचपन सबसे बेस्ट था, क्योंकि जिसको हम लाइट बोलते हैं, बाय द वे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लाइट का मतलब सिर्फ रोशनी होता है। रोशनी कैसे भी हो सकती है, बल्ब से भी हो सकती है, जैसे सूरज से होती है, मोबाइल की फ्लैश लाइट से, किसी भी चीज से, और दो लगाने से भी होती है। सो रोशनी हो सकती है, बात रोशनी की कर रहा हूं। तो बाय द वे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लाइट नहीं, लाइट का मतलब सिर्फ रोशनी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की आप जब बात करते हो, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, एक करंट भी बोल सकते हो। पता है बचपन कैसा था, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती ना, हम अंदर होते थे रूम के, आस जितने भी है ना पड़ोस में थे ना, जितने भी सारे के सारे बच्चे चिल्लाकर बाहर निकलते थे, लाइट गई, चिल्लाकर निकलते थे। अपना टाइम था, इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भी इंजॉय करते थे, तो आने पे भी इंजॉय करते थे। टाइम तो वो था, जाने और आने पे इतने मजे से उछल। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लाइट आ गई, मतलब हो वाला हो जाता था रात के टाइम पर भी। मुझे अच्छी तरीके से ये सीन याद है, क्योंकि मैं भी उनमें से था, मजा लेने में। यस, मैं भी उनके अंदर ही इन्वॉल्व था। सो गर्मियों के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी वाले बड़ी प्रॉब्लम चलती है ना। इलेक्ट्रिसिटी के टाइम, जैसे गर्मियों के टाइम में मुझे किसी ने कॉल किया, जैसे होता था एक दूसरे गांव से पूछ लेते थे कि भाई आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। कॉल करते भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या, मैंने कहा समझ जाओ इतने कहने में। आपने कॉल किया तभी समझ जाओ, आपके नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। लेकिन कुछ केस में होती थी, तो मैं तो ये कहता था, कई बार तो जलाने के लिए बोलते, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। इतना सा बोलना है कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप बोलने वाले हैं देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बोलने वाले हो? देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। आपने कहा, जैसे मान लीजिए बाहर रहना, भीड़ हो रखी है, आपने चेक करके कहा कि सर भीड़ है, आपको इतना सा बोलना है भीड़ है, तो कैसे बोलोगे? देयर इज क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, कैसे बोलने वाले हो? देयर इज क्राउड। कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा सर मेरा दोस्त है, इतना सा बोलना है, मेरा दोस्त है, कैसे बोलोगे? देयर इज माय फ्रेंड। कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा एक बिल्ली है, बिल्ली निकलने वाला था मुंह से, है ना, देयर इज ए बिल्ली। ऐसा ही होने वाला था। यस, देयर इज ए कैट, बिल्ली है, कैसे बोलोगे? आपने कहा कुत्ता है, देयर इज ए डॉग, कैसे बोलने वाले हो? यस, आपको इतना सा बताना है कि कुछ भी, अगर मैं बोलता हूं हाबू है, तो कैसे बोलोगे? देयर इज हाबू। अब कोई मीनिंग तो है नहीं, हाबू ही होता है। कोई मीनिंग तो है नहीं, कैसे बोलने वाले हो? देयर इज हाबू। कुछ भी है, आपको इतना सा बताना है। कुछ और एग्जांपल्स में लेके चलता हूं। आपने कहा सर पॉल्यूशन है, इतना बोलना है, पॉल्यूशन है, कैसे बोलोगे? देयर इज पॉल्यूशन। आपने कहा सिटीज के अंदर पॉल्यूशन है, देयर इज पॉल्यूशन इन सिटीज। कैसे बोलने वाले हो? यस, आपने कहा कि सर एक बैंक है, देयर इज ए बैंक। कैसे बोलने वाले हो? यस, आपने कहा कि कुछ भी है, आपने कहा एक भूत है, देयर इज ए भूत है। देयर इज ए घोस्ट, GHOST, देयर इज ए घोस्ट, भूत है, देयर इज ए घोस्ट आप यूज करते हो। GHOST। आज पता चला इस चीज के बारे में। अगर जी को हम इल्यूमिनेट करें ना, तो नाम आता है होस्ट। होस्ट से कहने का मतलब है, एक ना हॉलीवुड मूवी थी, आई थी एक, होस्ट नाम से एक मूवी थी। तो क्या था सिस्टम कि कंफर्मली याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ वेनम की बात बताता हूँ। वेनम मूवी आपने देखी होगी। सो उसमें क्या होता है कि जो वेनम होता है, वो एक्टर के अंदर इंटर हो जाता है, देन ही से यू आर माई होस्ट। मतलब जब भूत अंदर हो जाता है, अपने अंदर आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है?
हम उसके कंट्रोल में होते हैं, हम उसके लिए होस्ट कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी उसके लिए होस्ट होती है। तो आज घोस्ट वर्ड का मतलब समझ में आया है। यस, जी का मतलब घोस्ट जी, रिस्पेक्ट दे रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ी सी रिस्पेक्ट, उनको भी वैल्यू मिलनी चाहिए ना। ओके, सो आपने कहा भूत है, कैसे बोलोगे? देयर इज ए घोस्ट, कैसे बोलने वाले हो? अब उन चीजों पे लेकर चलता हूं जो कुछ भी हम स्कूल में पढ़ा करते थे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे की बात करता हूं, ऐसे आता था माय स्कूल पर, सो क्या लिखते थे? माय स्कूल नेम इज दिस, जो भी स्कूल का नाम था। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल से ना देते थे। जैसे कि आपने कहा कि मेरे स्कूल में लगभग 500 स्टूडेंट्स, आपने इतना कहा, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी है इतना ही बोलना है। आपने कहा मेरे स्कूल में लगभग 500 स्टूडेंट हैं। देयर आर, एक से ज्यादा हो गया ना, देयर आर लगभग, तो ऑलमोस्ट या अबाउट या अप्रोक्सीमेटली, 3 वर्ड आप उनमें से यूज कर सकते हो। देयर आर ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा मेरी स्कूल में 20 टीचर्स हैं, कैसे बोलोगे? यस, देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, कैसे बोलने वाले हो? यस, समीर है ना, गड़बड़ा गया है इतना ही कहा है, 20 है, लगभग का तो नाम ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट घुसाने की जरूरत ही नहीं है हमें। यस, जैसे कहा मेरी स्कूल में एक ऑफिस है, कैसे बोलोगे? देयर इज एन ऑफिस इन माई स्कूल, कैसे बोलोगे? मेरे स्कूल में एक गार्डन है, देयर इज ए गार्डन इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में बहुत सारे ट्रीज है, तो कैसे बोलोगे? देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी ट्रीज इन माई स्कूल, कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा मेरे स्कूल में 3 बसेज है, तो कैसे बोलोगे? देयर आर 3 बसेज इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में जैसे कहा कि लाइक एक स्टेज है, देयर इज ए स्टेज इन माई स्कूल। सो आपको इतना सा बताना है, कुछ भी है, कुछ भी है। आपने कहा एक वाटर टैंक है, देयर इज ए वाटर टैंक इन माई स्कूल। अब स्कूल के बारे में जनाब, देयर क्लास से आप ऐसे में कंप्लीट नंबर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? अगर सिर्फ एक देर क्लास हमें सही से पढ़ा दी जाती, लेकिन हमें तो रटाया गया था। चलो वो तो उनके, चलो जैसा भी था, प्रॉब्लम यह भी थी, हमने भी रटने पे फोकस किया था कि भाई नंबर लेके आते हैं। फोकस हमने आज तक नंबर लाने पे किया है, नॉलेज गेट करने पे नहीं। और जिस दिन अपना फोकस नॉलेज गेट करने पे होगा ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट उसी दिन होने वाली है। ओके, आगे लेके चलता हूं कुछ और चीजों को। अब जैसे बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, लाइक मान लीजिए आपको मंडावा के बारे में बताना है। अगर सच बताओ ना, आप मंडावा के बारे में बताना शुरू करोगे ना, तो कोई एंड नहीं है। इतनी सी चीजें बता सकते हो, इतना टाइम आप कंज्यूम कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। लाइक मंडावा के बारे में बताना है। सो कहा कि मंडावा इज ए फेमस टाउन इन द वर्ल्ड। इट इज, और यू कैन से मंडावा इज फेमस वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इनसाइड वॉल प्रिंटिंग। भित्ति चित्रों के कारण मंडावा फेमस है, यू नो वेरी वेल, इनसाइड वॉल प्रिंटिंग। नाउ अब मंडावा के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दो। आपने कहा मंडावा में एक गढ़ है, कैसे बोलोगे? गढ़, देयर इज ए फोर्ट इन मंडावा, कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? आपने कहा कि मंडावा में जैसे बहुत सारी हवेलियां हैं, तो कैसे बोलोगे? देयर आर मेनी हवेलीज। हवेली को हवेली बोला जाता है। देयर आर मेनी हवेलीज इन मंडावा, कैसे बोलोगे? यस, आपने कहा कि मंडावा में बहुत सारे होटल्स हैं, तो कैसे बोलोगे? मेनी होटल्स, HOTEL, होटल नहीं होटल बोला जाता है, होटल बोला जाता है। यस, H will be silent here. Yes, so कहा कि मंडावा में बहुत सारे होटल्स हैं, कैसे बोलोगे? There are many hotels in मंडावा। मंडावा के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, कैसे बोलोगे? There is a police station in मंडावा। मंडावा में 3 कॉलेज है, कैसे बोलोगे? There are 3 colleges in मंडावा। कहा कि मंडावा में एक गौशाला है, तो कैसे बोलोगे? There is a cow ranch। काउ रेंज गौशाला होती है। देयर इज ए काउ रेंज इन मंडावा, कैसे बोलने वाले हो? मंडावा में बहुत सारी दुकानें हैं, तो कैसे बोलोगे? देयर आर मेनी शॉप्स इन मंडावा, कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा मंडावा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, कैसे बोलने वाले हो? देयर आर मेनी कोचिंग्स इन मंडावा।
आपने कहा मंडावा में लगभग 60 प्लस स्कूल्स हैं, 60 प्लस स्कूल्स हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 60 प्लस स्कूल्स इन मंडावा। बहुत सारी चीजें। आपने कहा मंडावा में 3 पेट्रोल पंप है, कैसे बोलोगे? देयर आर 3 पेट्रोल पंप्स इन मंडावा, कैसे बोलोगे? मंडावा में बहुत सारी बैंक्स है, कैसे बोलोगे? देयर आर मेनी बैंक्स इन मंडावा। आपने कहा कि मंडावा में कई बाइक शोरूम्स हैं, कैसे बोलोगे? देयर आर मेनी बाइक शोरूम्स इन मंडावा। मंडावा में बहुत सारे सर्विस सेंटर्स है। देयर आर मेनी सर्विस सेंटर्स इन मंडावा। मंडावा में बहुत सारी लाइब्रेरीज है। देयर आर मेनी लाइब्रेरीज इन मंडावा। मंडावा में बहुत सारे व्हीकल्स है। देयर आर मेनी व्हीकल्स इन मंडावा। मंडावा में बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं। देयर आर मेनी प्लेग्राउंड्स इन मंडावा। अब कितना बताओगे? बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आपने कहा कई फोटो स्टूडियो मंडावा के अंदर। देयर आर मेनी फोटो स्टूडियोज इन मंडावा। बहुत सारी स्वीट शॉप्स हैं। देयर आर मेनी स्वीट शॉप इन मंडावा। मंडावा में एक नगर पालिका है। देयर इज ए म्युनिसिपैलिटी इन मंडावा। कोई नहीं है जनाब। बहुत कुछ बता सकते हो अगर मंडावा के बारे में बताना है, वो भी किसके यूज से? सिर्फ देर के यूज से। देर से आप बताते हो कुछ भी है, सेंस यही निकलता है। 1-2 एग्जांपल और लेके चलता हूं। जैसे पहले स्टोरी आती थी, एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा था, ऐसे तो ना बोले किंग वॉज। एक राजा था, एक राजा था। तो आप बोलने वाले हो देयर वॉज ए किंग। कैसे बोलने वाले हो? एक राजा था, कैसे बोलोगे? देयर वॉज ए किंग। एक बार एक किसान था। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फार्मर। कैसे बोलने वाले हो? कहा कि एक बार एक लोमड़ी थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लोमड़ी। लोमड़ी नहीं होती क्या? यस, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स। कुछ भी था, कुछ भी था, यही तो आप बताते हो। आपने कहा कि अंधविश्वास था, अंधविश्वास था। देयर वॉज सुपरस्टिशन। यह सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास था। तो आप बोलने वाले हो देयर वॉज सुपरस्टिशन। कैसे बोलने वाले हो? कैसे बोलने वाले हो? इसी से एक वर्ड और बनता है सुपरस्टिशियस। टी आई के बाद में CIOUS। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, जो अंधविश्वास में एक मतलब अंधविश्वास करता है। ह्यूमन के लिए बात कर लेते हैं। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे आपने कहा कि गांव में संस्कार हैं, गांव में संस्कार हैं। देयर आर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे संस्कार देयर इज बोल सकते हो बाय द वे, बट देयर आर आप यूज करने वाले हैं। देयर आर सैक्रामेंट्स। सैक्रामेंट्स का मतलब होता है संस्कार। गांव में संस्कार है जनाब। गांव है ना तो संस्कार जिंदा है, गांव है तो संस्कृति जिंदा है, गांव है तो है ना लोगों के साथ अच्छा रिश्ता जिंदा है, गांव है तो इंसानियत जिंदा है। दिस इज कॉल्ड विलेज। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए विलेज। सैक्रामेंट्स का मतलब होता है संस्कार। आपने कहा गांव में संस्कार हैं, कैसे बोलोगे? देयर आर सैक्रामेंट्स इन विलेज। कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा गांव में शुद्ध हवा है। देयर इज प्योर एयर, प्योर या फ्रेश एयर इन विलेज। कुछ भी है, कुछ भी है। आपने कहा फैसिलिटीज हैं। देयर आर फैसिलिटीज, देयर आर फैसिलिटीज। कुछ भी है, आपको इतना सा बताना ना तो देर के साथ हम बात करने वाले हैं। कुछ भी है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, जिससे मना करते हैं कुछ नहीं है। जो चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्मूला, दैट विल बी, वो फॉक्स वाली स्टोरी याद है क्या आपको? वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लोमड़ी। लोमड़ी होती है? लोमड़ी नहीं होती है। तो पहले लोमड़ी थी, अंग्रेजों ने आके इसको फॉक्स बना दिया है।
यस सो एक बार एक लोमड़ी थी, ये फनी स्टोरी थी. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लोमड़ी, सी एंटर्ड इनटू माय खेत, आई ने पत्थर मारा एंड सी वाज भाग पड़ी. या दिस वाज द स्टोरी. अब बात करते हैं मना करने के साथ कोई भी चीज नहीं है. सो हियर इज अ सेकंड फॉर्मूला एंड दैट वुड बी देयर इज या आर was और वर. नो लगा देना सिर्फ, नो और समथिंग का चीज. नॉट बोलने की जरूरत नहीं है इतना. नो यूज कर सकते हो ओनली. ओके, नॉट भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू. यस, मान लीजिए किसी आप जगह पर गए, जगह पर जाकर के देखा कि यहां तो फैसिलिटी नहीं है. आपने कहा फैसिलिटी नहीं है, तो आप यूज करने वाले हो देयर इज नो फैसिलिटी. कैसे बोलने वाले हो? देयर इज नो फैसिलिटी. कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा सर गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कमी है. एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है. क्या नहीं है? हॉस्पिटल नहीं है. तो कैसे बोलोगे? देयर इज नो गुड हॉस्पिटल. देयर इज नो गुड हॉस्पिटल इन विलेज. गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है. कैसे बोलोगे? देयर इज नो गुड हॉस्पिटल इन विलेज. आपने कहा गांव में पोल्यूशन नहीं है. देयर इज नो पोल्यूशन इन विलेज. कैसे बोलोगे? मान लीजिए सपोज यू आर वेटिंग फॉर बस. सपोज यू आर वेटिंग फॉर बस. आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया इंतजार करते हुए. बाद में पता चला कि कोई बस नहीं आ रही है. फिर आपने इधर उधर से जानकारी ली. जानकारी लेने के बाद पता चला कि बस वाले तो आज स्ट्राइक पर हैं. आपने घर वालों को कॉल बैक किया. आपने कहा कोई बस ही नहीं है. बस ही नहीं है. आप बोलने वाले हो देयर इज नो बस, अदरवाइज देयर इज नो बस सर्विस भी आप यूज कर सकते हो. आपने कहा बस सर्विस नहीं है. देयर इज नो बस सर्विस. कैसे बोलने वाले हो? आपने कहा ट्रैफिक नहीं है. देयर इज नो ट्रैफिक. आपने कहा डाउट नहीं है. देयर इज नो डाउट. कैसे बोलने वाले हो? कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम. देयर इज नो इश्यू. कोई इश्यू नहीं है. देयर इज नो इश्यू. मान लीजिए आप पानी पीने गए, कैन से पानी डाल रहे थे, पानी बोतल फिल कर रहे थे, पानी आया नहीं. ऊपर से खोल कर देखा, खोल करके देख के वापस आए. आपने कहा सर कैन में पानी नहीं है. पानी नहीं है तो आप यूज करने वाले हो देयर इज नो वाटर इन कैन. CANE लिखा जाता है कैन. कहा कि कैन में पानी नहीं है. कैंपर भी बोलते हैं लोग इसको, कैंपर भी बोलते हैं. यस, कहा कि कैन में पानी नहीं है. कैसे बोलोगे? देयर इज नो वाटर इन कैन. कैसे बोलने वाले हो? मोबाइल से कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा. लास्ट में चेक किया नेटवर्क, का नेटवर्क ही नहीं है. कैसे बोलोगे? देयर इज नो नेटवर्क. कैसे बोलोगे? सर्विस ही नहीं है. देयर इज नो सर्विस. देयर इज नो सर्विस. इंटरनेट ही नहीं है. देयर इज नो इंटरनेट. 4G नेटवर्क नहीं है. देयर इज नो 4G नेटवर्क. सो बताते हैं कुछ भी नहीं है. आपने कहा कि 4G नहीं था पहले, नहीं था 4G नहीं था. तो कैसे बोलोगे? देयर वॉज. पास्ट है. देयर वॉज नो 4G नेटवर्क. कैसे बोलने वाले हो? 2G चलाया है? चलाया गया? यस. 4G चलाने वाले क्या जाने 2G की वैल्यू. पता इतना पेशेंस रखना पड़ता था 2G चलाने पर. आजकल तो क्या करते हैं, टेप करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है. टेप कर देते थे, फिर वो घूमता रहता था है ना सर, जैसे है ना फेचिंग दिखाता रहता था. फिर लास्ट में धीरे धीरे किस्तों में ओपन होता था. वो 2G का जमाना वो था. लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं 2G के जमाने में भी मूवीज डाउनलोड किया करता था. क्या करता था, मुझे जैसे पहले 8 रुपए का एक रिचार्ज होता था. रात को 12 से 6 बजे तक वो अनलिमिटेड यूज होता कर सकते थे. सो मैं रात को 12 बजे उठता था, 8 रुपए का रिचार्ज किया. रिचार्ज करने के बाद में जैसे अनलिमिटेड हो गया, 12 से 6 बजे तक मूवी डाउनलोड करके लगा दी.
स्पीड कितनी थी? 5 KB, 10 KB, 15 KB, 20 KB या कई बार 50-60 तक भी चली जाती थी। ऐसा ही होता था, इतनी थी। सो डाउनलोड टेप करके अब रात को कई बार संभालना पड़ जाता, कई बार रीट्राई बता देता, गया सारा गया, किया धराया, सारा का सारा गया। बोलते ना गई भैंस पानी में, कैसे बोलते हो? ऑल वेंट इन वैन। गई भैंस पानी, किया कराया सारा खराब गया। कैसे बोलने वाले हो? ऑल वेंट इन वैन। कैसे बोलने वाले हो? कैसे बोलोगे? ऑल वेंट इन वैन। सो मना करने के लिए आप यूज करते हो नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, जिससे हम पूछने वाले हैं, जिससे हम पूछने वाले हैं क्या कुछ भी है क्या? कुछ भी है क्या? या ओके, पूछना है। सो हम टाइम वर्ड पहले यूज करने वाले हैं, इज और was were there something। कुछ भी है क्या? कुछ भी है क्या? कुछ भी है क्या? यस। मान लीजिए कि आप कार के शोरूम में गए। मान लीजिए आप कार के शोरूम में गए और पहले से पता रहता था कि उस शोरूम में कभी कभार नई गाड़ियाँ आती हैं। कई बार हो जाता है कुछ केस में, थोड़ा शोरूम होता है, कभी कभार ऑर्डर पर गाड़ी आती हैं। आप गए, जाते आपने पूछा कि कोई नई कार है क्या? कोई नई कार है क्या? कैसे पूछने वाले हो? इज देयर एनी न्यू कार? कैसे पूछने वाले हो? इज देयर एनी न्यू कार? न्यू कार है तो बोलने वाले हो देयर इज न्यू कार, नहीं है तो देयर इज नो एनी न्यू कार। कुछ भी है क्या? आपने पूछा, मान लीजिए लोगों ने पूछा परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट में पूछा कि परफेक्ट में फैसिलिटीज है क्या? फैसिलिटीज है क्या? एक से ज्यादा है तो आप आर यूज करने वाले हो। आर देयर फैसिलिटीज इन परफेक्ट। कहा कि परफेक्ट में फैसिलिटीज है क्या? कैसे बोलने वाले हो? आर देयर फैसिलिटीज इन परफेक्ट। कैसे बोलने वाले हो? यस, फैसिलिटीज है तो देयर आर फैसिलिटीज, नहीं है देयर आर नो फैसिलिटीज या देयर इज नो फैसिलिटी। कहा कि कोई बस है क्या? कोई बस है क्या? कैसे पूछोगे? इज देयर एनी बस? कैसे बोलोगे? कोई बाइक है क्या? इज देयर एनी बाइक? कैसे बोलोगे? कोई नया स्टूडेंट है क्या? इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट? कैसे बोलोगे? नया स्टूडेंट है तो आप बोल देना देयर इज ए न्यू स्टूडेंट, नहीं है तो देयर इज नो न्यू स्टूडेंट आप बोलने वाले हो। सो ये बताइए क्लास कैसी लगी? वो तो लगने पे पता चलता है कैसी लगती है। यस, सो हियर इज ए क्लास ऑफ देयर, जिससे हम बात करते हैं कुछ भी बताने के लिए। सो यूज दिस क्लास, प्रैक्टिस दिस क्लास, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन improve your language and you can gain your knowledge. So for today it is enough. आज के लिए बस इतना ही। आज के समाचार यहीं खत्म होते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सर, वेलकम।